Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhr Hayat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. We will discuss about the renal system part 5 of the physiology of the USMLE book, first aid series. Now the most important topic of the renal system is the renin-angiotensin-aldosterone system. Now we are discussing about, this is the efferent arterioles. These are the efferent arterioles. This is the glomerulus. This is the distal convoluted tubule. Hence, distal convoluted tubule columnar cells. These columnar cells are the macula densa, and hence these between the efferent arterioles and the macula densa, these cells, a cluster of cells, are called as the juxtaglomerular cells. It has the most important characteristic. Now, why RAS or the renin-angiotensin-aldosterone system? This is totally known as the RAS, RAAS. These mainly activated by the decreased blood pressure or the decreased sodium delivery. In case if there is a decreased blood pressure in the area of the distal convoluted tubule or NaCl or the sodium mainly adaptation, these are the sensor cells. Macula densa are the sensor cells. If both decreases, either decrease in the partial pressure or decrease in the NaCl activity, they mainly sense the macula densa, mainly sensing the blood pressure. Hence, it mainly affect on the juxtaglomerular cells and then mainly production of the renin system. Here, the renin is produced by the juxtaglomerular cells. Renin is mainly as a cutting system. Liver mainly produces the angiotensinogen, and mainly the renin converts angiotensinogen into the angiotensin 1. Then angiotensin 1 moves through the lungs area. Here, angiotensin converting enzyme is present, and mainly this is also a cutter, and mainly cuts the peptide bond of the angiotensin 1 and converts into the angiotensin 2. Here, the most important is the angiotensin 2 hormone. And other we are discussing increased sympathetic tone, always beta 1 receptor increased the RAS activator. The most important we are discussing here is the angiotensin 2. Why it produced? Because आप देखें यहाँ पे blood pressure decrease है या NaCl decrease है, इसीलिए ही angiotensin 2 produce है. इसका क्या काम है? या ये तो blood pressure increase कराना है या इसकी NaCl की absorption करवानी है और blood में NaCl increase कराना है, जिसकी वजह से blood pressure भी increase होगा. तो दो ये काम हो गए. अब ये mainly blood pressure कैसे increase होगा? तो angiotensin, ये जो blood vessels हैं वहां पे जाएगा और एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कराएगा. तो पहला हमारा काम ये हो गया कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया थ्रू द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स. आर्टरियोल्स की जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो उसको करके तो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. अब दूसरा क्या? NaCl की एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे जो ये इंक्रीज सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी. अब हाइड्रोजन सिक्रीट आउट होगा. आप पीसीटी में अगर आपने देखा तो सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी होती है पीसीटी में, तो पीसीटी में ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी. तो यहाँ हमने हाइड्रोजन की सिक्रीशन ही करानी है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करानी है, जिसकी वजह से सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा. एक तो होगा इस तरह से. दूसरा ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करता है. अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये रिलीज कैसे हो रहा होता है? अब जो एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड, वहां पे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो मेनली प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन. उसका भी जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट. तो जो एल्डोस्टेरोन जब सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा? एक तो करेगा अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स. पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स थे वहां हमने देखा था ये हाइड्रोजन सिक्रीट करते हैं, और दूसरे थे बीटा इंटरकलेटेड सेल्स, वो बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन कर रहे थे. Both are involving in the acidosis and alkalosis. Now we will discuss later on. But यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करेगा? प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और पोटेशियम की सिक्रेशन कराएगा. तो इसलिए हमने सोडियम को देखना है कि कैसे कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है. और दूसरा थर्ड मैकेनिज्म ये है कि ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से थर्स्ट इंक्रीज होगी, वो पानी ज्यादा पिएगा. जब पानी ज्यादा पिएगा, ब्लड में पानी ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. और दूसरा जो
ADH रिसेप्टर, ADH जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन का मकसद क्या था कि भाई जो ब्लड प्रेशर है उसको भी इंक्रीज कराना है और NaCl को भी एब्जॉर्ब कराना है बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म। बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स। एंजियोटेंसिन 2 एक तो हो गया, उसने ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया। दूसरा, अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल की मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल की, यहाँ पे ना इफरेंट आर्ट्रियोल की, और जिसकी वजह से मेनली इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट इसमें जो है ब्लड व्हेन ब्लड रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो प्रिजर्व GFR। This is not so much important, but most important is the why it increases blood pressure. Here in this process vasoconstriction, other is the यहाँ पे सोडियम की, क्योंकि ये सेंसर सेल था तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होगी और हाइड्रोजन की सिक्रीशन इंक्रीज करा देता है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल्स हैं वो भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं, तो वाटर की। तो ये सोडियम और वाटर दोनों ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा रहे होते हैं। तो हमारा इन मैकेनिज्म के जरिए, दैट्स व्हाई इट्स द, अब यहाँ पे रेनन प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन है। अब इनको जो है, अब देखें ये रेनन, then the angiotensin, then the aldosterone. These system is the renin angiotensin steron system, aldosterone system, or the ROS, renin angiotensin aldosterone system. अब जो रेनन है वो, अब देखिए रेनन वो वही चीजें बताएगा। रेनन क्या करेगा, यहाँ पे जो मैकुला डेंसा है, अब यहाँ पे जो रेनन है वो स्प्लिटेड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलस रिस्पॉन्स। अब जेजी सेल से रिलीज हुआ और इसने एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, और इसका यही वही सिस्टम बताएगा। अब इसके बाद आता है एस। एस क्या है, अब यहाँ पे देखें जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या था, कैटालाइजेस द कन्वर्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सिस्टम टू एंजियोटेंसिन 2 लोकेटेड इन मेनी टिश्यू, बट कन्वर्जन मोस्टली इंपॉर्टेंट अकर्स इन द लंग, produced by the vascular endothelial cells in the lung, produced by the vascular endothelial of the lungs. अब उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 का मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है देखें हाउ इट्स मेंटेन द ब्लड प्रेशर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे एंजियोटेंसिन 2 ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराया है। इसी तरह एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, अब ये क्या होते हैं, अब यहाँ पे तो हो गए ब्लड प्रेशर डिक्रीज है। अब मेनली इफ ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो ये क्या प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द एट्रिया। जब क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या ब्लड ज्यादा है तो एट्रिया में तो मसल होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उनके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो देखेंगे बहुत ज्यादा ब्लड आ गया है, तो ये जो एट्रिया हैं वो ANP रिलीज करेंगे, और जो वेंट्रिकल हैं वो BNP, यानी कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और ये इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तब प्रोड्यूस होंगे। अब ये क्या कर देंगे, इनहिबिट्स द रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इनका काम क्या है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ये जो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो डिक्रीज होगा। ये कब रिस्पॉन्स हुआ था, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज था। ये आप देखें ना, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारा रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम इंक्रीज हुआ था। अब ये क्या करते हैं मेनली, जो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूराइन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। यूरिन प्रोमोट नाइट्रोयूरेसिस, बहुत ज्यादा यूराइन की एक्सक्रीशन। इसी तरह जो ADH है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। ये देखें जो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये मेनली क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है थ्रू द प्रिंसिपल सेल्स। इस तरह से जो एल्डोस्टेरॉन है ये मेनली क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और वाटर की जो पोटाशियम की है वो सिक्रीशन करता है। यहाँ पे देखें ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये मेनली क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और वाटर की सिक्रीशन करता है। अगर आपने इनके नहीं देखे तो हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें हमने एल्डोस्टेरॉन का हमने बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल सेल्स है वहां पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम की सिक्रीशन होती है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर and remember us in your prayers. Allah Hafiz.